بلٹن کا آغاز کریں گے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اسرائیل کھل کر پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ فلسطینیوں کا قاتل پی ٹی آئی کے شرپسندوں کی حمایت کرنے لگا۔ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والا پی ٹی آئی شرپسندوں کا حامی بن گیا۔ اسرائیل نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کی گرفتاری پر واویلا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اجلاس میں اسرائیل نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، تاہم کونسل نے پاکستان سے متعلق رپورٹ کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ کئی ریاستوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی۔ انسانی حقوق کے فروغ میں حاصل کردہ پیش رفت کو سراہا۔ پاکستان کے چوتھے جائزے میں 340 سفارشات پیش کی گئیں۔ ان میں سے اسرائیلی سفارشات سمیت صرف 87 کو نوٹ کیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین اسرائیل اور بھارت کے اتحادی ہیں۔ اسرائیلی اور بھارتی حکومت پی ٹی آئی کی حامی ہے۔ پتہ چل گیا چیئرمین پی ٹی آئی اسرائیلی ایجنٹ کیوں کہلاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ شہری رحمان اور عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا واضح ہو گیا کہ 9 مئی کے واقعات کا فائدہ کس کو ہوا۔ پتہ چل گیا فورن فنڈنگ کیوں ہوئی۔ 9 مئی کے حملے اتفاقیہ نہیں، منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ 9 مئی کے حوالے سے وہ جو ابھی سوال پوچھ رہے ہیں نا، وہ واپس وہیں آتا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کو فائدہ ہوا 9 مئی کا۔ یہ اب باتیں سب کے سامنے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو پاکستان کا دشمن بننے کے لیے، ملک دشمن عناصر کو، ریاستوں کو جو چاہے وہ کریں، وہ لابیز کو وہ استعمال کریں۔ ان کی نظر میں یہ جائز ہے۔ ابھی بھی ان کو یہ احساس نہیں ہے، نیازی کو یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان کس نہج پہ کھڑا ہے، لوگوں کی تکالیف کیا ہے، چاہے وہ سیلابوں سے ہوں یا ان کو جو اس وقت ان کے انفلیشن سے ان کے جیبوں پر دباؤ ہے، یہ ان کو نہیں کوئی احساس۔ اس ملک کی معیشت تباہ کی اور اس ملک کی 9 مئی کو سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو یہ ایجنڈا نہ صرف لوکلی انہوں نے یہاں پہ ملک کے خلاف سازش کی، اب تو بین الاقوامی ثبوت آ چکا، irrefutable ایویڈنس آ چکا، اور اسرائیل نے عمران خان کے حق میں ڈاکیومنٹ جمع کرایا ہے جو کہ قیامت تک منہ بولتا ثبوت رہے گا کہ یہ اسرائیل بیکڈ پارٹی ہے، فورن فنڈڈ پارٹی ہے اور یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے۔ سعودی عرب نے مشکل وقت میں پھر ہاتھ تھام لیا، پاکستان کو $2 ارب دے دیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تصدیق، آئی ایم ایف نے پاکستان کا بیرونی فائنانسنگ کا پلان منظور کر لیا، خزانہ بھرنے سے روپیہ بھی تگڑا۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.23 سستا، $278.57 پر آ گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس 14 ماہ بعد 45,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ سرمایہ کاروں کے وارے نیارے، اربوں روپے کما لیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم کب تک قرضوں کے ساتھ معیشت کو چلاتے رہیں گے، زنجیریں توڑنے کے لیے مل کر چلنا ہوگا۔ اسلام آباد میں وزیراعظم بااختیار خواتین پروگرام کے اجرا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بہتر مواقع دینے والی قومیں بہت آگے نکل گئی ہیں، رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ 75 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں ہماری خواتین کے جو حقوق، ان کی امپاورمنٹ، ان کا احترام، ان کے رائٹس، ان کے لیے اپرچونٹیز، تاکہ وہ معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں بڑی میننگ فلی، پروڈکٹیولی، یہ مواقع ہم 75 سال میں مہیا نہیں کر سکے۔ وہ قومیں، چاہے اسلامی دنیا ہے، چاہے مغربی ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں وہاں پر خواتین نے بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کیا معاشرے کی، تو وہ قومیں کہیں آگے بڑھ چکی ہیں اور پاکستان اس معاملے میں ابھی بہت سفر طے کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے خزانے میں جمع کرایا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جب پاکستان کو مشکلات کا مقابلہ ہے تو انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ قرضے ہم کب تک لیتے رہیں گے اور کب تک قرضوں کی زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے؟
रोने धोने से काम नहीं चलेगा। माजी से हमें सबक हासिल करके हमें एक कौम की तरह, एक जानदार कौम की तरह हमें आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म ने पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी के फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में शहबाज शरीफ ने नौजवानों में लैपटॉप भी तकसीम किए। इस मौके पर एक तालिबे इल्म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लैपटॉप का तोहफा देने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, इस लैपटॉप की बदौलत मेहनत करके कल को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तालिबे इल्म को गले लगाया और अपनी कुर्सी पर बिठाया। ये स्टूडेंट के लिए एक खजाना है। वो इसी तरह यूथ प्रोग्राम लेके आए इन टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए, और ये टैलेंटेड स्टूडेंट आपके विजन पे भरपूर उतरेंगे और ये इस मुल्क का फ्यूचर है। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। रहमान अली ने मुझे बताया कि मैं लैपटॉप खरीदना चाहता था, मैं अफोर्ड नहीं करता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के तहत आज मुझे मेरिट पे लैपटॉप मिल रहा है। आज बुनैर का ये बच्चा, और इन्होंने कहा कि हम कल वज़ीर आज़म आपकी सीट पे होंगे। हमने आज रहमान को अपनी सीट पे बिठाया है। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल है। भारत ने फिरोजपुर के मकाम पर 73,000 क्यूसिक पानी दरिया सतलुज में छोड़ दिया है, जिसके बाद दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। दरिया चनाब में चिन्नौट के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भवाना में पुल दोस्त मोहम्मद लाली से 1,62,000 क्यूसेक का रेला गुजरने लगा, जिससे कई इलाकों में ज़मीनी कटाव भी जारी है। उधर जंग में भी दरिया चनाब में सैलाब का खतरा है। दूसरी जानिब कसूर में दरिया सतलुज में पानी का बहाव बढ़ गया है। दरिया चनाब में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से अब बात करेंगे चिन्नौट में हमारे ब्यूरो चीफ वक़ार घुमन, और दरिया सतलुज का हवाला लेंगे कसूर से जाकिर हुसैन से, और आप से मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। तो वक़ार घुमन साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ चिन्नौट से। वक़ार घुमन, बताइएगा चिन्नौट में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चिन्नौट में आज सपहर जो आज का सबसे बड़ा सैलाबी रेला था, 1,62,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर चुका है, जो कि अब हेड प्रीमू की जानिब रवां दवा है। चिन्नौट में ये आज जो सैलाबी रेला गुजरा है, इसमें बवाना के तहसील बवाना में मौजा शामिल है, और मुतअद्दिद जो देहात हैं वहाँ पर फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं, और दरिया के पानी के कटाव की वजह से भी फसलें ज़ेरे आब आई हैं। इन इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से माल मवेशी और इंसानों को पहले ही वहाँ से इनका इन्हला मुकम्मल करवा लिया गया था, जिसकी वजह से किसी भी किस्म के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं आई। ताहम फसलें ज़ेरे आब आने की वजह से ज़राअत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। चिन्नौट से आज का जो रेला था गुजर के इस वक्त हेड प्रीमू की जानिब रवां दवा है। इस वक्त चिन्नौट में अगर हम वाटर लेवल की बात करें तो 1,40,000 क्यूसिक का रेला जो इस वक्त भी गुजर रहा है। ठीक है वक़ार घुमन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दरिया रावी में पानी की सतह 55,000 क्यूसिक तक पहुंच गई है। शादरा और जस्टर के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी है। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब के खतरे के पेश नज़र रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। बात करेंगे समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। समरा, बताइएगा। से आबी जारियत का सिलसिला जारी है। भारत ने अपने दरियाओं में तूफ़ानी के बाद पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ दिया है। मैं इस वक्त दरिया रावी के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त पानी की जो सतह है वो 55,000 क्यूसिक है। इस वक्त रावी के मकाम पर जो है वो पानी की सतह भी ज़्यादा है और उसका बहाव भी ज़्यादा है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो सिविल डिफेंस के इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। 70,000 क्यूसिक अभी भी पानी दरिया में है, तो लेकिन ये गुजर रहा है। अगर इसी तरह गुजर गया तो कोई सैलाब का ऐसा खतरा नहीं है। अगर इंडिया दोबारा जो हालत करता है, अगर पीछे से पानी छोड़ता है तो ज़ाहिर है सैलाब का खतरा हो सकता है। पानी दरिया से अगर इसी तरह से गुजर जाए तो सैलाब का खतरा नहीं है। जबकि अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर महकमा सिविल डिफेंस और साथ ही साथ रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। मुमकिन सैलाब की जो सूरत हाल है उससे बचा जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो खाना बदोश लोग थे उनको भी यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है, ताकि उनको भी जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना पहुँच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाओं की सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन मोहसिन नकवी ने इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मुमकिन सैलाब से निमटने की तैयारियों का तफ़सीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने दरिया सतलुज के बेड में मौजूद आबादियों के फौरी इनखला की हिदायत की है। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि भारत ने सतलुज में भी 2,11,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है। फिरोजपुर से 1,21,000 क्यूसिक पानी गुजरेगा।
मॉनसून एक बार फिर रंग जमाने को है तैयार। मुल्क में कब और कहां बारिश का इम्कान है, जानते हैं साथी एंकर जिशान मलिक से। में 13 से 17 जुलाई तक मॉनसून सिस्टम के तहत मजीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ औकात में बादल बरसेंगे, जिससे लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। मौसम की बात करें तो पंजाब के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म रहा, ताहम अंदर 24 घंटों में बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात की जाए सिंध की, जनाब सिंध भर में ही गर्मी का राज है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के भी बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहा, ताहम चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में LGA 1 विंडो सेल का दौरा। शहरियों ने सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा एक काम के लिए कई चक्कर लगवाए जाते हैं, फाइल आगे भेजने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। वज़ीर आला का फौरी एक्शन 1 विंडो सेल का पूरा अमला तब्दील कर दिया। कहते हैं रिश्वत की शिकायत पर फौरी एक्शन होगा। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने परवेज इलाही को 5 लाख रुपए जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया, ताहम परवेज इलाही की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी है। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं कि परवेज इलाही PTI छोड़ने को तैयार हैं। मुनीस इलाही बाहर बैठे हैं, मालूम नहीं कब आएंगे। नून लीग के साथ पंजाब में कुछ हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अब 3 बार गए हैं, उन्होंने पता किया परवेज इलाही साहब का जेल में जाके। हम तो चाहते हैं कि वो जल्द जो है बाहर आ जाए। वो तो मतलब कि तैयार है PTI छोड़ने के लिए। दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं उसके ऊपर हमारी कल पार्टी मीटिंग हुई है, उसमें चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और जहाँ बात है सीट एडजस्टमेंट की, वो शहबाज शरीफ साहब आगे उसकी एक कमेटी बना रहे हैं, जिस कमेटी की हमारी पार्टी से भी डिस्कशंस होंगी ऑन सीट एडजस्टमेंट्स। तो मेरे ख्याल में कि पंजाब में कई हलकों में जो है वो बाज़ाहिर लग रहा है कि नून के साथ इंशाल्लाह सीट एडजस्टमेंट होएगी। दुनिया की तेजी से बढ़ती आबादी इंसानी वसाइल के लिए बड़ा खतरा बन गई। हर गुजरते लम्हे के साथ बच्चों की पैदाइश में पाकिस्तान ने चीन और भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह पैदाइश क्या है, जानते हैं साथी एंकर जिशान मलिक से। दुनिया की आबादी खतरनाक टाइम बॉम्ब बन गई। आलमी आबादी 8 अरब से भी बढ़ गई और शरह पैदाइश में हर मिनट हर घंटे इजाफा होने लगा। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा 1 अरब 42 करोड़ 56 लाख आबादी वाले मुल्क चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन गया। लेकिन पाकिस्तान बच्चों की पैदाइश की शरह में भारत और चीन से भी आगे निकल गया। पाकिस्तान की आबादी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से दोगुनी शरह से भी ज्यादा बढ़ रही है। आबादी बढ़ने की यह शरह 1.91% है, जो कि भारत के 0.7 से भी तेज है। चीन में यह शरह 0.52 और अमेरिका में 0.47% है। गुज़श्ता मरदमशुमारी के बाद से पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 5 करोड़ अफराद का नुमाया इजाफा हुआ। यह आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, मुल्की वसाइल उसी रफ्तार से कम हो रहे हैं। बढ़ती हुई शरह अफजाइश पाकिस्तान के महदूद वसाइल पर बहुत बड़ा बोझ बनने लगी। 2050 के बाद भारत और चीन के बाद नाइजीरिया दुनिया का तीसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। इसके बाद अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, इथियोपिया और बांग्लादेश बड़ी आबादी वाले ममालिक बन जाएंगे। पाकिस्तान के मुकाबले में अमेरिका और चीन में आबादी बढ़ने की शरह कम और वसाइल ज़्यादा हैं। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद इतनी बड़ी आबादी के लिए मतलूबा मिक़दार में खुराक पूरी नहीं कर पा रहा।
आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो आगे खतरा ही खतरा है। स्टूडियो से फिर वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।